Hello guys, welcome to the Dream High Academy. As you all know, this is the lecture series for Jammu and Kashmir Police Sub Inspector for the portion of mathematics. This has been launched on the Dream High Academy. Let us begin today's lecture with the quote that push yourself because no one else is going to do it for you. So you have to push yourself to the limits, follow the process, success will follow you. Today we will be having lecture number 16, part 2nd of the mensuration. In the last topic we discussed the basic 2D and 3D shapes, their areas, perimeters, surface areas and volumes. और उनकी फॉर्मूला वगैरह हमने सब कवर अप की हुई है. Again you can take a glance here. This all has been covered in the last lecture. Now in today's lecture, based on these concepts, based on all these formulae, we will be having problems related to this mensuration. In today's topic, problems will be mainly focusing on cube and cuboid, mainly, not limited to this. So the question number 1 of today's session here is, it is given that if volume of cube is 729 centimeter cube, find the total surface area of the cube. So here for a cube, so cube की definition क्या है? Each edge or each side is equal in length, है ना. ये एक ऐसा 3D पिक्चर है या जिसमें आप बता सकते हो कि surface area of each face, how many number of faces we have here? 6 faces we have. So if the dimension or if the length of an edge is a, then we know that its volume is given as a cube and its surface area is given by 6 times a square. So based on these formula and these concepts, it is given that volume of cube here. Let us suppose we have this cube having edge length a, then volume here is given as 729 centimeter cube. So volume is a cube is equal to 729. So then how we compute a? हमें देखना है कि 729 किसका क्यूब है. So you need the knowledge of cube and cube roots. 729 if you find, you will get 729 can be written as 9 cube because 9 into 9 into 9 is 729. So therefore comparing this cube will go a is equal to 9 centimeter. Therefore if a cube of having side 9 centimeter we are going to take, then its volume will be 729 centimeter cube. Okay. Further what we have to do, for the same cube we have to find its surface area. तो पहले हमने साइड निकालना है, एज की लेंथ निकालनी है, फिर आसान है क्या इसका सरफेस एरिया निकालना. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है? 6 टाइम्स ए स्क्वायर. 6 टाइम्स ए स्क्वायर. सो दिस इज 6 टाइम्स, नाउ ए इज 9 स्क्वायर, सो 6 into 81 it is 486. Now since this is area, therefore it is going to be for centimeter, it will be centimeter square. So option number B for Bombay is the right answer. Okay, next question. The length of longest diagonal of a cube. See, if again we are going to take this cube, if we take this cube here, if we take this cube and इसकी हमने एज लेंथ ए रखी है, ही इज टॉकिंग अबाउट द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल. अगर आपको यहाँ डायग्राम से देखना है, लॉन्गेस्ट डायगोनल मीन्स जो इसको कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ कनेक्ट करती है, दैट इज द लॉन्गेस्ट डायगोनल हियर. ये दिस इज गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट डायगोनल डी. एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दिस लॉन्गेस्ट डायगोनल एंड साइड यू हैव टू रिमेंबर, this D longest diagonal is A into root 3. A into root 3. Okay. So the relationship between this longest diagonal and this side is you have to multiply the edge length by root 3. ये relationship आपने याद रखनी है. उसके बाद क्या दिया है? यही D दिया है, longest diagonal की लेंथ 7 root 3. और इसी क्यूब का हमने वॉल्यूम निकालना है. हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? A क्यूब. So we have been given with D
तो हमें a निकालना है यहाँ से। वो कैसे निकालेंगे? यूजिंग दिस फॉर्मूला हियर, बिकॉज d कैन बी रिप्लेस्ड बाई a root 3. This is equal to 7 root 3. Root 3 will go cancel. Therefore, cube having longest diagonal 7 root 3 centimeter is going to have edge length equal to 7 centimeter. Now you know the edge length, therefore volume you can compute. So therefore volume of this cube is going to be a cube, that means 7 cube, that means 343. So 343 and it will be in centimeter cube. Already पूछा है centimeter cube में, बताओ 343. Option number C is the right answer. Next question. Next question here. It is given that from a body of solid cube. Again we have a solid cube. We have this solid cube. We'll take it here. We have this solid cube. So from this solid cube having edge length, it is given that 7 centimeter. So this is 7 centimeter here. A solid sphere is removed, यानी कि यहाँ इस क्यूब से एक सॉलिड स्फीयर को रिमूव किया जाता है. सॉलिड स्फीयर को रिमूव किया जाता है. ये सॉलिड था, इट्स बाय हैविंग सम मास डेंस मटेरियल, है ना. दिस वे यू कैन इमेजिन कि जो ब्लॉक है ये क्यूबिकल ब्लॉक है कोई. इसी क्यूबिकल सॉलिड ब्लॉक से क्या हो रहा है, एक क्यूब को निकाला, एक सॉलिड स्फीयर को निकाला जा रहा है. सॉलिड स्फीयर को निकाला जा रहा है. सॉलिड स्फीयर कैसे बनेगा? यू कैन थिंक लाइक दिस. इस सॉलिड स्फीयर को आउट किया जा रहा है. तो और क्या दिया है? द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड. सो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कितना बचा? वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड विल बी नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से क्या निकालना है? आउट क्या हुआ है? स्फीयर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये निकाला गया है, ये बाहर निकाला गया है. और यही रिमेनिंग वॉल्यूम हमें कितना दिया है? दिस हैज़ बीन गिवन एज 163:1/3 सेंटीमीटर क्यूब. मिक्सड फॉर्म में दिया गया है. दिस इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या बनेगा? 7 क्यूब बनेगा. दिस इज 7 क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना बनेगा? सी, फॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. इट इज 4/3 पाई आर क्यूब. बट हेयर वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज आर. ये जो यहाँ से निकाला गया है ना सॉलिड स्फीयर, ये ऐसे निकाला गया कि आपका पूरा एक एज इन्वॉल्व होता है, यानी कि डायमीटर और क्यूब का एज बराबर है. डायमीटर और क्यूब का एज बराबर है. सो यहाँ पे जो आपका आर है ना रेडियस, वो होगा हाफ ऑफ एज लेंथ, यानी कि a/2 होगा, हाफ ऑफ एज लेंथ. ऐसे आप सोच सकते हो. ये ना जो ये साइज है ये इस डायमीटर के बराबर है, तब जाके इसे निकाला गया है ये. सो यू कैन थिंक हियर रेडियस कैन बी कंप्यूटेड एज हाफ ऑफ एज लेंथ, दैट इज 7/2 सेंटीमीटर. So therefore volume of sphere will be 4/3 pi into r cube will be 7/2 cube. 7/2 cube. So therefore no, it has been given what's the diameter. Okay, we have to find actually diameter. Let it be r. r को हम ऐसे रखेंगे, चूँकि हमें diameter निकालना है, तो we will write it as 4/3 pi r cube. So diameter कितना होगा? That will be 2 times r. 2 times the radius of the sphere. So from here on what we will do, यहाँ इसको ट्रांसफ़र करेंगे. ये वाला टर्म इस साइड ले लेंगे और ये वाला टर्म हम यहाँ ट्रांसफ़र कर लेंगे. तो क्या बनेगा? 4/3 pi r cube is equal to 7 cube minus 163:1/3. This is 4/3 pi r cube. 7 cube is 343.
माइनस इस मिक्सड फॉर्म को सिंपल में कन्वर्ट करो, 3 मल्टीप्लाई दिस प्लस 1/3, दिस इज 490/3. फर्दर दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 3 3 is 9, 3 4 is 12, दैट इज 1029 minus 490/3. Here this 3 and 3 will go in cancellation. So 4 pi r cube is, difference will be 539. So our simple r cube will be 539/4 pi. This is 539/4 pi के बदले 22/7 ऐसे कंप्यूट करेंगे. So this way you can compute this is equal to 42.87. So r cube here is, जब आप इसको कंप्यूट करोगे अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है आपका 42.87. सो यू हैव टू फाइंड अ नंबर जिसका क्यूब कितना होगा 42.87. अगर आपको पता है 1 क्यूब 2 क्यूब इज़ 8, 3 क्यूब इज़ 27, 4 क्यूब इज़ व्हाट 64. So it must be a number between 3 and 4. So here r belongs to number between 3 and 4. So अगर आप देखोगे 3 से 4 तक कितना हमारा आ रहा है. So आई गेस अगर आप देखोगे यहाँ से तो ये 3.5 मिलेगा आपको, 3.5 का क्यूब. सो 3.5 आपका रेडियस मिला, तो उसका डबल कितना होगा, तो डायमीटर इसका डबल होगा, तो 2 टाइम्स r यानी कि 7 आएगा. कितना आएगा, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 7. या अगर आप अप्रॉक्सीमेट भी करोगे इन्हीं नंबर बिटवीन 3 and 4, आप 3.5, 3.6, 3.4 मान के चलो, उसका डबल हमेशा आपके ऑप्शन में ना 7 के सिमिलर आएगा. देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करना, दोबारा से देखना, दोबारा से रीचेक करना एक बारी. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हियर गिवन इज 3 क्यूब्स ईच हैविंग वॉल्यूम आर प्लेस्ड वन अबव द अदर. देखो ईच वॉल यानी कि वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इज गिवन इक्वल टू 1728 सेंटीमीटर क्यूब. लेट अस सपोज दैट वो जो क्यूब है, जिस क्यूब की ये बात कर रहे हैं, ये हम कॉपी रखेंगे, ये जिस क्यूब की बात कर रहे हैं, लेट अस सपोज उसका जो साइड है दैट इज इक्वल टू ए. सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, बट 3 क्यूब्स आर प्लेस्ड वन अबव द अदर, यानी कि ऐसे करके 3 क्यूब्स को वन अबव द अदर रखा गया है. ऐसे करके दे आर केप्ट वन अबव द अनदर. सो लेकिन ईच क्यूब के बारे में अगर हम लिखेंगे, वॉल्यूम इट विल बी ए क्यूब इज इक्वल टू 1728. तो यहाँ पर आपको एक एज निकलेगा, एज साइज मिलेगा आपको ईच क्यूब का. सो फॉर ए गिवन क्यूब, सो आपने देखना है 1728 किसका क्यूब है, ये 12 का क्यूब है. सो देयरफॉर ए क्यूब विल बी 12 क्यूब. क्यूब एंड क्यूब नंबर्स का आपका ध्यान रखना पड़ेगा, वैल्यूज़ ये आपको पता होना चाहिए. सो देयरफॉर हियर ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. नाउ 3 सच क्यूब्स आर केप्ट वन अबव द अनदर. सो जब आपने 3 क्यूब्स को ऐसे रखा, ये क्यूबॉइड में कन्वर्ट हो गया. ये जो रिजल्टिंग शेप बना है आपका क्या बना, क्यूबॉइड बना. इस क्यूबॉइड में क्या है, ये वाला डायमेंशन सेम है, यानी कि ओवरऑल इसकी लेंथ अगर आप देखोगे, हाइट चेंज हो रही है, सॉरी, लेंथ इसकी कितनी होगी, ए के बराबर यानी कि 12 सेंटीमीटर है ना. ब्रेडथ कितनी है, वो भी सेम ही है, एज के बराबर ये ब्रेडथ है ना. ये लेंथ ए के बराबर, ब्रेडथ सेम आ रहा है, ये भी 12 सेंटीमीटर. बट इसकी हाइट 3 टाइम्स हो गई, तो हाइट कितना बनेगा 3 टाइम्स ए यानी कि 36 सेंटीमीटर है ना. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग सॉलिड. हमें यहाँ देखना है जो रिजल्टिंग सॉलिड है, रिजल्टिंग सॉलिड क्या बना, हमें ये क्यूबॉइड बना. और इस रिजल्टिंग सॉलिड का हमने निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, ट्वाइस लेंथ ब्रेडथ प्लस ब्रेडथ हाइट प्लस लेंथ हाइट. सो लेट अस सबस्टिट्यूट द वैल्यूज. 2 टाइम्स
लेंथ इंटू ब्रेडथ कितना हो गया 12 इंटू 12 यानी कि 144 प्लस ब्रेडथ इंटू हाइट कितना हो गया 12 इंटू 36 यानी कि 432 प्लस लेंथ इंटू हाइट कितना हो गया वो भी 432 आएगा। जब आप 432 को ऐड करोगे 432 फिर 144 ऐड करोगे देन मल्टीप्लाइड बाई 2 यू आर गोइंग टू गेट 2016। चूँकि ये सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सो 2016 ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू गेट यू मैच्ड हेयर। डी फॉर Delhi is the right answer for this question. Now here in the next question it is given that a right circular cone of maximum volume is cut out of a solid wooden cube। जब wooden cube की बात कर रहा है तो ये लीजिए हमारा wooden cube आ गया। सॉलिड है तो मतलब यानी कि ऐसे अंदर फिल्ड है ये। कैन थिंक लाइक दिस इज फिल्ड solid, okay. Thereafter what is a right circular cylinder? इसमें से क्या निकाला गया है राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं तो मैक्सिमम वॉल्यूम तब निकलेगा जब आप साइड और उस राइट सर्कुलर सिलेंडर ना का डायमीटर इसके एज लेंथ के बराबर होना चाहिए, कि ऐसे कट करोगे इस सर्कल के राइट सर्कुलर का जो ऊपर सर्कल होता है और नीचे वो पूरे एजेस को कट करना चाहिए, तो वही आप यहाँ से बाहर निकालोगे। वही आप इसमें से बाहर निकालोगे। तो यही आप इसमें से बाहर जब निकालोगे, यही जब आप इसमें से बाहर निकालोगे, फिर आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, द मटेरियल लेफ्ट इज व्हाट परसेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब। देखो अगर हम ओरिजिनल क्यूब की बात करेंगे, ओरिजिनल क्यूब का वॉल्यूम V1 मान के चलते हैं, वो आपका ए क्यूब होगा बिकॉज हमने उसकी लेंथ एज लेंथ 1 मान ली है, दैट इज 1। ओके, देयर आफ्टर हम देखेंगे रिमेनिंग वॉल्यूम कितना हो गया, मटेरियल लेफ्ट, मटेरियल कितना बचेगा, मटेरियल लेफ्ट कितना होगा, वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। मगर उस सिलेंडर में खासियत क्या है, उस सिलेंडर में ये खासियत है कि सिलेंडर का जो डाया है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, वो एज लेंथ के बराबर होगा। यानी कि यहाँ ध्यान रखना, ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, ये कितना होगा, हाफ ऑफ एज लेंथ। क्यों, बिकॉज लिखा है मैक्सिमम वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम तभी पॉसिबल है जब आप ऐसा राइट सर्कुलर सिलेंडर इसमें से निकालोगे, खोखला बनाना है, जब आप उसका पूरा टॉप का फेस में से ना एक सिलेंडर ऐसा बनाओगे जिसका डाया और एज लेंथ बराबर हो, क्यूब के बराबर होना चाहिए। सो शाबाश। फर्दर तो मटेरियल लेफ्ट कितना है, इसको ऐसे ही रखना हमने, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, उसकी फॉर्मूला क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। सो ए क्यूब इज ए क्यूब माइनस पाई क्या है हमारे पास, इट इज़ पाई। आर कितना सबस्टिट्यूट करना है मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने के लिए, इट इज़ हाफ ऑफ एज लेंथ यानी कि a/2 का स्क्वायर। और हाइट की जब हम बात करेंगे, देखो हाइट और इसका एज लेंथ भी बराबर है, तो हाइट के बदले भी वी आर हैविंग a इन सबस्टिट्यूशन ऑफ दिस। तो दिस इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस पाई की सबस्टिट्यूशन करेंगे 3.14, ए स्क्वायर इंटू ए ऊपर आ गया ए क्यूब, नीचे 2 स्क्वायर हो गया 4, तो ए क्यूब माइनस 3.14 को 4 से डिवाइड करो, 4 पॉइंट आएगा पहले, 7 इज 28 आएगा, फर्दर 8 आएगा, 5 आएगा एंड ए क्यूब आएगा। तो इनका जो डिफरेंस है ए क्यूब कॉमन निकलेगा, 1 माइनस 0.785 आ गया हमारा, यानी कि ए क्यूब 1 में से 0.785 निकाल दो,
0.215 आया। सो मटेरियल लेफ्ट जो हमें आया, मटेरियल लेफ्ट कितना है, a³ टाइम्स दिस नंबर। तो इसने पूछा है द मटेरियल लेफ्ट इज व्हाट परसेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब, व्हाट परसेंटेज निकालने के लिए उससे डिवाइड किया जाता है, उससे डिवाइड किया जाता है। तो जब इसको मटेरियल लेफ्ट को परसेंटेज में करोगे, और ये भी पूछा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल क्यूब, तो ओरिजिनल क्यूब ये मटेरियल लेफ्ट का जो नंबर आपके पास है, मटेरियल लेफ्ट का जो नंबर आया हमें, जो वैल्यू आ गई वो आया a³ टाइम्स 0.215 को हमने डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब जो कि a³ है। सो a³ विल गो कैंसल, दिस इज 0.215। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको 100 और साथ में परसेंट से मल्टीपल करना है, तो 100 और साथ में परसेंट रहेगा, तो जब मल्टीपल करोगे तो 21.5% अप्रॉक्सीमेटली आपका आया 21.5%। yes, we have approximate value is here 21, so we have to go with the option A. गुड, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। In the next question it is given that the length, breadth and height of a cuboid. Now if we talk about cuboid कैसा होता है, इसका लेंथ, ब्रेडथ और हाइट के डायमेंशन अलग अलग होंगे, सारे सेम नहीं होंगे, कुछ ना कुछ फ़र्क होगा। ये हमारा क्यूबाइड आ गया, इसका लेंथ, ब्रेडथ और हाइट अलग अलग है। लेंथ हियर, देन वी हैव ब्रेडथ हियर, देन वी हैव हाइट हियर। यही लेंथ, ब्रेडथ और हाइट किस रेशो में दिया है, लेंथ इज टू ब्रेडथ इज टू हाइट दिया है 6:3:2। इसका क्या मतलब है, रेशो में दिया है। तो जैसे भी आपने रेशो को नंबर में कन्वर्ट करना, तो लेंथ को एज्यूम करेंगे 6x, फिर ब्रेडथ होगा 3x और हाइट ले लोगे 2x के नंबर में। ओके, आगे क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया दिया है। क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है क्यूबाइड का, 2 टाइम्स लेंथ ब्रेडथ प्लस लेंथ हाइट प्लस ब्रेडथ हाइट। सॉरी, कितना होता है, 2 टाइम्स लेंथ ब्रेडथ प्लस ब्रेडथ हाइट प्लस लेंथ हाइट। तो ये टोटल सरफेस एरिया 1800 दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेडथ कितना बनेगा, 18x स्क्वायर। ब्रेडथ हाइट कितना बनेगा, 6x स्क्वायर। लेंथ हाइट कितना बनेगा, 12x स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 1800 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, तो कॉमन है, 18 प्लस 18 हो गया 36 एक्स स्क्वायर हो गया ये। तो जब आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर विल बी 1800 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 36, so our x square will be 900 by 36. So if we replace this by a number with square, it is 30 by 6 whole square, because 30 square is 900, 6 square is 36, square will go, and we have 30 by 6, that is 5. This is 5 and this will be in centimeter. How? Because area आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। तो ये जो x मिला हमें, ये हमें 5 सेंटीमीटर मिला। क्या मिला, 5 सेंटीमीटर। आगे पूछ रहा है वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें लेंथ, ब्रेडथ और हाइट पता होना चाहिए, है ना। देख लीजिए, लेंथ कितना है, 6 टाइम्स x, ब्रेडथ इज 3 टाइम्स x, हाइट इज 2 टाइम्स x। तो इफ़ वी सबस्टिट्यूट, लेंथ कितना बनेगा, 6 5 इज 30 सेंटीमीटर, ब्रेडथ इज 3 5 इज 15 सेंटीमीटर, हाइट इज 2 5 इज 10 सेंटीमीटर। वंस वी हैव दिस, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकालना है। So for a cuboid, volume is given by length multiplied by breadth multiplied by height. So 30 multiple 15 multiple 10. So what we have, 4500 centimeter cube. Centimeter cube because volume है. So 4500, option A is the right answer.
Now the next question here. Now the next question. The width B of a room is twice its height. रूम तो जनरली क्यूबाइड शेप का होता है. यहाँ क्या दिया है, विड्थ यानी कि ब्रेडथ कितना दिया है, ट्वाइस द हाइट, एंड हाफ ऑफ द लेंथ यानी कि ब्रेडथ इज ऑल्सो हाफ ऑफ द लेंथ. सो आगे क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल. लॉन्गेस्ट डायगोनल देखो, अगर क्यूबाइड होता तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल हमने कितना बताया था क्यूब के लिए, सॉरी क्यूब के लिए हमने अभी बताया था 8 टाइम्स √3. बट फॉर ए क्यूबाइड length of longest diagonal is given by square root of length square plus breadth square plus height square. So length of longest diagonal for cuboid is this. Therefore this length can be computed as square root of L square plus B square plus H square. So from this you can compute length कितना आएगा यहाँ से 2 times B. So 2B whole square प्लस बी स्क्वायर को अनचेंज रखेंगे प्लस हाइट के बदले भी कितना लिखेंगे, यहाँ से एच आएगा b/2. तो यहाँ भी सबस्टिट्यूट करेंगे यानी कि लेंथ और हाइट को हमने कन्वर्ट किया बी में, एक ही क्वांटिटी में कन्वर्ट किया. क्यों, बिकॉज आंसर बी में दिया हुआ है. ओके तो जब आप अंदर देखोगे दिस विल बी 4b² प्लस b² प्लस b²/4. तो अब क्या ही करना है, अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है. पहले आएगा 4b², इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आएगा प्लस 4b² प्लस b²/4. सो फर्दर इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. 4 16b² प्लस 4b² प्लस b²/4. 4 बाहर जाएगा रूट से तो 1/2 बनेगा. अंदर 21b² आ गया. यहाँ 21b² में भी b बाहर जाएगा तो b/2 √21 आपने आंसर ढूंढना है. सो b/2 √21 इस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. बट ये b रूट के बाहर है. ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन दैट ए सॉलिड क्यूब. सो क्यूब की बात हो रही है. सॉलिड क्यूब, सॉलिड क्यूब मीन्स दिस इज हैविंग सम मास. दिस इज क्यूब. Cube means length of each side is equal. देखो यहाँ क्या बता रहा है, फेस डायगोनल. देखो फेस डायगोनल और लॉन्गेस्ट डायगोनल में फ़र्क है. यहाँ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ये आ गई लॉन्गेस्ट डायगोनल, लेकिन फेस डायगोनल मीन्स एक फेस के अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करना. ओके और अगर आप देखोगे इस वाले का क्या रिलेशन है, इस डायगोनल का फेस डायगोनल का, फेस डायगोनल का रिलेशन होता है a × √2. लेकिन लॉन्गेस्ट का क्या होता है, अगर ये वाला लॉन्गेस्ट का क्या है, दिस इज a टाइम्स √3. कलर मैंने सेम यूज़ किया सो दैट आपको ये बाद में काम आ जाए. कलर से आप पहचान जाओ इसको. ओके तो फेस डायगोनल दिया हुआ है यानी कि हमें d यूज़ करना है a टाइम्स √2 वेयर a इज द लेंथ ऑफ ए क्यूब. देयर आफ्टर यहाँ से हमें a कैसे मिलेगा, d इज गिवन एज 128 √2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू a √2. √2 वो कैंसल, a इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर हो गया आपका. लेकिन ये क्यूब के बारे में. लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, इज मोल्डेड टू फॉर्म ए क्यूबाइड. अब इसको थोड़ी ऑल्ट्रेशन की गई है, लेंथ ब्रेडथ और हाइट का डायमेंशन चेंज किया गया हुआ है. सो इस क्यूब को क्यूबाइड में कन्वर्ट किया गया. क्यूब को क्यूबाइड में कन्वर्ट अगर किया है लेकिन वॉल्यूम तो सेम रहेगा. लेकिन बता रहा है जो बना क्यूबाइड उसकी लेंथ और ब्रेडथ दी हुई है. तो इसको जब आपने कन्वर्ट किया, किस में कन्वर्ट किया आपने इसको, कन्वर्टेड इनटू क्यूबाइड. उस क्यूबाइड में क्या है हमारे पास, उस क्यूबाइड में लेंथ कितना है, लेंथ इज गिवन एज 512 सेंटीमीटर, ब्रेडथ इज 160, दिस ब्रेडथ इज 160 सेंटीमीटर. हाइट हमने निकालनी है, हाइट हमने निकालनी है. देख लीजिए सबसे पहले हम काम करेंगे, वॉल्यूम दोनों का सेम होगा. यहाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब
और क्यूबाइड बराबर होगा, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन की गई है क्यूब को क्यूबाइड में, है ना। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना लिख सकते हैं, ए क्यूब। तो यहाँ आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड वो बनेगा। तो ए क्यूब कितना हो गया, 128 का क्यूब करना है, इज इक्वल टू, इस वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड के बदले क्या लिखोगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ओके, नाउ सबस्टिट्यूट 128 का क्यूब है, लेंथ इज 512, ब्रेड्थ इज 160 एंड हाइट हमने निकालनी है। सो वी हैव दिस इक्वेशन वायर इन वी हैव वन अननोन, तो h विल रिमेन देयर। तो h कैसे निकालोगे, 128 क्यूब है ना, तो 128 128 128 लिख के नीचे वी विल राइट 512 इंटू 160। यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा सबसे आसान तरीका क्या है। देखो 128 को जब आप 4 से गुना करोगे तो 512 बनेगा। यहाँ इस 4 3s 4 2 से काटो तो 32 आ गया। फिर यहाँ 16 1s 0s, यहाँ 16 2s काट लो। फर्दर क्या करो, 2 1s 2 5s काट लीजिएगा। तो आपका क्या बनेगा, 5 1s 5 2s 10, 5 5s 25, तो आपका 6 आ गया बाद में, 25.6 आपका आंसर बनेगा। 25.6 आपका हाइट निकल के आया। तो हाइट की वैल्यू कितनी आई, 25.6 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question here is, from a rectangle sheet of dimension 32 centimeter, 18 centimeter, a square of 3 centimeter is cut from the four corners of a sheet and a box is made। कोई sheet है, कोई प्लेन शीट है, 2D शीट है, इसका क्या है 32 सेंटीमीटर का लेंथ दिया हुआ है और आगे 18 सेंटीमीटर हमें ब्रेड्थ दी हुई है। बता रहा है कि स्क्वायर ऑफ 3 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम 4 कॉर्नर्स, यानी कि यहाँ से 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर है ना, ये 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर यहाँ से, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर यहाँ से, क्या करना है, कट करना है। कट करने के बाद उसको फोल्ड करना है और बॉक्स बनाना है। तो इससे क्या होगा, जितना पार्ट हमने फोल्ड किया तो फोल्ड पार्ट उस बॉक्स का हाइट बनेगा, यानी कि हाइट 3 सेंटीमीटर होगी। आप इमेजिन करो, फोल्ड में आपने कट किया 3 सेंटीमीटर, फिर ऊपर खड़ा किया उसको, तो वो आपका उसका हाइट बनेगा, उस बॉक्स का हाइट तो बन गया। लेकिन आप देखो यहाँ लेंथ में ना, ये वाला 3 सेंटीमीटर और ये वाला 3 सेंटीमीटर कम हो गया, यानी कि उस बॉक्स की अब क्या होगी, लेंथ ऑफ 32 सेंटीमीटर नहीं, 32 में से 3 बार कम होगा, यानी कि लेंथ 26 सेंटीमीटर बचेगा। सिमिलरली ब्रेड्थ वाली साइड में भी क्या, ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर कम होगा, तो ये जो बॉक्स की ब्रेड्थ है ये 18 माइनस 3 यानी कि 12 सेंटीमीटर बचेगा आपका। तो जो हमारे पास अब क्यूबॉइड बना, उस क्यूबॉइड का हाइट 3 सेंटीमीटर होगा, ब्रेड 12 सेंटीमीटर और लेंथ 26 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो इट इज़, लेंथ कितना है 26 है, 26 इंटू 12 इंटू 3, सो दिस इज 26 into 36. So if you do 26 into 36, I guess this is 946 आपको मिलेगा, 936 मिलेगा आपको। सो 936 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आएगा। Okay, next question. I guess this is the last question of this session. A tank is in the form of a cuboid, है ना, टैंक कोई है in the form of cuboid है। A tank is in the form of a cuboid with length 12 meter, with length 12 meter। तो इसका लेंथ कितना दिया है, लेंथ इज 12 मीटर।
If 18 kilometer of water is removed from it, the volume goes down by 30 centimeter. वॉल्यूम गोज डाउन बाय 30 सेंटीमीटर, यानी कि लेवल नीचे कितनी आती है अगर हम इसमें से 18 किलो मान लीजिए ओरिजिनली ना, ध्यान रखना यहाँ पे इसकी ऐसी लेवल थी पानी की। अगर मान लीजिए बता रहा है कि अगर हम 18 किलो लीटर पानी निकालेंगे, इसकी लेवल नीचे 30 सेंटीमीटर आती है। देखो इतना वॉल्यूम हमने निकाला, वॉल्यूम कितना निकाला 18 किलो लीटर सॉरी 18 किलो लीटर। अगर हम देखेंगे 18 किलो लीटर, 18 किलो लीटर हमने पानी निकाला, वो भी तो एक क्यूबॉइड ही निकला, वो भी तो एक क्यूबॉइड ही निकला। और वॉल्यूम जो निकला उस क्यूबॉइड का हाइट कितना होगा, ये बता रहा हाइट 30 सेंटीमीटर नीचे आया, तो हाइट उसका 30 सेंटीमीटर आ गया। मीटर की बात करेंगे नहीं कि 0.3 मीटर आ गया नीचे, 0.3 मीटर नीचे आ गया। लेंथ तो टैंक का सेम ही है, लेंथ तो टैंक का सेम ही है, तो जो पानी निकला वो भी तो एक क्यूबॉइड ही कम हो गया। तो हम देखेंगे जो खाली क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम कितना है, वो उस निकले हुए पानी के साथ हम इक्वेट करेंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है, किलो लीटर को हमने देखना है वो कितना होता है। 1 किलो लीटर कितना होता है, वो 1 मीटर क्यूब होता है। वो 1 क्यूबिक मीटर होगा। तो अगर हम देखेंगे ये जो वॉल्यूम है निकला हुआ पानी, उससे एक आपका खाली हो गया ना क्यूबॉइड, यानी कि वो क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो पानी खाली करने से हो गया वो तो बराबर हो जाएगा। सो ये जो वॉल्यूम है इसका क्या बनेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और पूछा क्या है, वो ब्रेड्थ पूछी है, तो ये ब्रेड्थ है, ठीक है, वही निकालना है। वॉल्यूम 18 किलो लीटर है, यानी कि 18 मीटर क्यूब लिख सकते हैं हम, बिकॉज किलो लीटर और मीटर क्यूब सेम होता है। लेंथ इज 12, ब्रेड्थ इज निकालना है, हाइट इज 0.3। तो यहाँ से हमें क्या करना है, ब्रेड्थ विल बी 18 बाई 12 इंटू 0.3, सो दिस विल बी 3/2 इंटू 0.3, सो दिस विल बी 10/2, यानी कि 5 मिलेगा, एंड इट विल बी इन द मीटर्स। सो ब्रेड्थ यहाँ से निकल के आया 5 मीटर। ध्यान रखना है यहाँ जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व की ना, हमने पानी जो कम हो गया, जो रिमूव हो गया, उससे तो एक क्यूबॉइड बना ना। कौन सा क्यूबॉइड बना, ये निकला हुआ पानी का क्यूबॉइड, ये वाला ध्यान रखना है आपने, ये वाला जो लेवल कम हो गया, ये वाला क्यूबॉइड। तो इसी पे हमने लगाया फॉर्मूला, इसका वॉल्यूम, ये जो ऊपर आया वॉल्यूम वो 18 किलो लीटर है, किलो लीटर का मतलब है मीटर क्यूब। तो इसके लिए लेंथ तो फिलहाल सेम ही रह रहा है, ब्रेड्थ भी सेम है, लेकिन हाइट कितना कम हो गया वो क्वेश्चन में दिया है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर मीन्स 0.3 मीटर। तो वही वॉल्यूम इक्वेट करके हमने फॉर्मूला में लगाया, तो ब्रेड्थ 5 मीटर आ गया। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे इसमें। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, you can join us there on the Dream High Academy. So I hope you have liked this session. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.